Hello, dear champions. My name is Ravin Kumar, and you are watching Science Square classes. So, in this part, we are going to cover all our examples of chapter 8. And one more thing, if you are new on this channel, first of all, subscribe this one and share with your friends and family members and ask them to subscribe and watch the videos. And if you did all these things, then join us fast. Come on, listen. So in the example one, what we have given that tan A equals to 4 by 3, find the other trigonometric ratios of the angle A. Say yes or no? So means we have to find out the other trigonometric ratios, and we all know that there are 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, sec or cosec. Okay, so listen, what we have given, tan A equals to 4 by 3, and as we all know that the formula is papa bol papa, haste haste bol, papa bol papa, haste haste bol. So first of all, we start from sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Sine, cos, tan. Tan means P upon V. So the value of the following ratio is a perpendicular and base. दो रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो. So listen, tan A equals to 4 upon 3. So we can say this is the perpendicular and this is the base. Just I am drawing a figure here like A, B, C. Is there any problem? And the angle that we have given is angle A. कौन सा angle given आपके पास? Angle A. And as we all know, the side in front of right angle is always hypotenuse. This side is the side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be base. कोई doubt है? So next, it means the ratio tan A equals to is the ratio of perpendicular and base. So we can say the following perpendicular is 4 and the base is 3. But sir, we know that the 4 upon 3 is a ratio. It is not actual side. ये एक्चुअल साइड क्या पता सर हो और क्या पता नहीं हो. दिस इज द रेशियो. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर अ नंबर के, कि दैट यहां पर इनके साथ में एक नंबर के है. ठीक है, के से के को कैंसिल आउट करोगे तब भी क्या आएगा? 4 by 3 मीन्स इट विल नॉट इफेक्ट द साइड. यस और नो? ओके, सो अब आप बोल सकते हो कि सर यहां से जो परपेंडिकुलर इट विल बी 4k और बेस विल बी 3k. जो बेस है वो क्या होगा? 3k. बोला सर आपको कैसे पता ये साइड है कि नहीं? जस्ट आई एम सेइंग, अगर ये साइड हुई, मान लो 3 by, सच में एक्चुअल में 4 by 3 हुआ, इट मींस के की वैल्यू क्या है? 1. और क्या पता सच में ये साइड नहीं हुई, कुछ और नंबर हुआ, तो आप बोल सकते हो सर के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. मींस आप यहां पर एक क्या ले लिया आपने? के, कि जिस नंबर से ऊपर जो 4 है वो के से कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे भी किससे कैंसिल आउट हुआ? के से. तो मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल नंबर डालने के लिए. बोला सर कंफ्यूज हो रहे, छोड़ तो नहीं हो रहे, नहीं समझ में आ रहा था, छोड़ दो. ठीक है, बस इतना समझ लो, क्या लगा. ठीक है. Okay, so as we all know, if we have given two sides in a right angle triangle, then we can find out its third side by using Pythagoras theorem. And the Pythagoras theorem is also known as Bodhain theorem. So we will use PZT by using Pythagoras theorem. So the Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Is there any doubt? No. So we have to find out the hypotenuse. So hypotenuse is AC. So AC square equals to, what is the value of perpendicular? The value of perpendicular is 4k. So 4k square. So what will be the 4k square? 4k square 16. 16k square plus base is 3. 3k square 9 and k square. So we can say AC square equals to 25k square. But we have to find out the value of AC, not AC square. So we can write it following like 5k square. Is there any doubt? बोले सर अब क्या करें? Take square root. जब आप इसका square root लोगे, take square root. So we have to take square root, and whenever we take square root, then we will get AC equals to plus minus 5k. But as we all know that side can't be negative, कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. So we will consider it positive. तो सर हमारे पास क्या आ गया? हाइपोटेनस. आप बोल सकते हो कि आपके पास 5k आ गया. क्या आ गया? 5k. And what is question saying to us that find the other trigonometric ratios, and how many trigonometric ratios are there? 6, and one we have given. So first of all sine, after that cos, after that tan, after that cot, after that sec, and after that cosec. Sir, what will be the formula of sine? Papa bol, papa haste haste bol. Perpendicular upon hypotenuse. The first one is sine. So perpendicular upon hypotenuse. What is the value of perpendicular?
What is the value of perpendicular? 4k. And what is the value of hypotenuse? The hypotenuse value is 5k. So k से k cancel out हो गया. Now what we have? We have sin A equals to 4 by 5. Is there any doubt? No. Cos A, base upon hypotenuse. What is the value of base? The value of base is 3k and the hypotenuse is 5k. K से k cancel out. It will be cos A equals to 3 by 5. Next, sir, what is the value of cot A? As we all know that cot is the reciprocal of tan. कि जो cot है वो tan का ही क्या होता है? Reciprocal. तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्या कि इसकी वैल्यू 4/3 थी तो इसकी क्या होगी 3/4. बोला नहीं सर मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे फाइंड आउट करना है. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड द बेस इज 3k and perpendicular is 4k. कैसे के क्या हो गया कैंसिल आउट. सो इट विल बी 3/4. Is there any doubt? Next, sec A. Sir, we all know that sec A is the reciprocal of cos. किसका reciprocal है? Cos का. So cos की वैल्यू क्या है? 3/5. So it will be 5/3. Next, cosec A. Cosec A is the reciprocal of sin A. Cosec A is the reciprocal of sin A. So we can say cosec A equals to 5/4. So these are the remaining trigonometry ratios that we have to find out in this question. So समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है. Next. This is an important question. Listen. If angle B and angle Q are acute angles. Acute angle means an angle lie between 0 degree to 90 degree. Means 0 से बड़ा और 90 से छोटा. 0 डिग्री से कोई एंगल बड़ा होगा 90 से छोटा होगा. It will be known as acute. कोई डाउट है? नहीं. Okay. So answer. So first of all, what we have given angle B and angle Q are acute angles. Means we have two acute angles. Okay. So I am not following the other statement. I'm not reading the other statement. First of all, I am following the following statement, given statement. The first statement. Okay. So I am taking like this is A. Sorry. This is A. Okay. Or A B Q. Okay. So now we have a right angle triangle in which we have two acute angles. The first one A is right angle and the remaining two angles are acute. बोला सर इसमें तो दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं A B C and P Q R. कहाँ गिवन है भाई? गिवन है क्या? What we have given? We have given that angle B and angle Q are at acute angles. We don't have given that there are two different triangles. गिवन है क्या? आप खुद सोचो है क्या? बोलने को आपको मैं भी बोल सकता हूं कि आप इसमें दो ट्राइंगल कंसीडर करो और सिमिलरिटी सिक्वेशन करो. अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो ना. क्या सिमिलरिटी लगा रखी है? हाँ नहीं ना. We don't have given two triangles. We have given that angle B and angle Q are acute. So we can consider by अपन अपने तरीके से कंसीडर कर सकते हैं ना. जस्ट वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अपने को तो जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करनी है और अगर वो फॉलो नहीं होती तब आप बताना. तो बोलने को मैं भी बोल सकता हूं कि दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सिमिलरिटी. ट्रिग्नोमेट्री है, मैं ट्रिग्नोमेट्री से ही अप्लाई करूंगा. ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस एंगल्स, राइट एंगल. ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं. तो अगर चाहते हो कि क्वेश्चन इजी बने तब तो मेरा वाला स्टेटमेंट फॉलो करो. नहीं चाहते तो आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ सकते हो. बट वी डोंट हैव गिवन टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. कहीं मेंशन नहीं है. वी जस्ट what is mentioned in this question that there are two angles, acute angles B and Q. से सुनो. तो अगर वो स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही तब आप बोल देना कि सर गलत कर रहे हो. तब तक आप, और अगर मान लो कोई आपको बोलता भी है कि नहीं कि कौन टीचर पढ़ा रहा है आपको, कहां से करके आ गई, इतना छोटा सा नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा है ना. कोई ऐसा नहीं होता. मान लो मैं आंसर शीट चेक करने जा रहा हूँ सीबीएसई की, तो इट इज डजंट मैटर दैट व्हाट यू राइट, है ना, कि आपने कैसे सोल्व किया कैसे नहीं. इफ द मेथड इज राइट देन इट इज डजंट मैटर दैट व्हाट यू विल गेट हाफ नंबर या कंप्लीट नंबर मिलेंगे आपको अगर आपने अच्छे से सोल्व किया. मेथड सही होना चाहिए, बाकी कुछ मेथड मैटर नहीं करता. कोई दिक्कत है? तो अगर कोई बोले कि गलत है तो उससे ये पूछ लेना कि सर गलत कहां हुआ. वो बोलेगा कि इसमें टू एंगल्स, एंगल बी एंड क्यू. अरे तो है ना एंगल बी एंड क्यू एक्यूट एंगल्स. ये इसने बोला है क्या टू ट्रायंगल से लेना है? बोला है कहीं पे? देखो देखो बोला है? नहीं बोला ना. सो क्यों हार्ड बनाना किसी चीज को? नहीं बनाना ना. पक्का? ठीक है. सो वी हैव गिवन दैट देयर आर एंगल बी एंड एंगल क्यू आर टू एक्यूट एंगल्स. सो देखो मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्यूट है, मीन 0 डिग्री से बड़े 90 से छोटे. इट मीन जो एंगल बच गया वो 90 डिग्री हो गया.
So as we all know, the side in front of right angle is always hypotenuse. Is there any doubt? No. अब मैं यहां पर एक बार एंगल Q को कंसिडर करूंगा और एक बार एंगल P को कंसिडर करूंगा. A B Q बोला सॉरी A, अरे क्या कर रहा हूं मैं, A B Q. कोई डाउट है? बोला सर आपने एंगल बी को तो कंसिडर कर लिया, अब एंगल क्यू को कर लेते हैं. तो ठीक है, मैं एंगल क्यू को कंसिडर कर लेता हूं. कोई डाउट है? नहीं है ना? अब देखो व्हाट वी हैव गिवन नेक्स्ट. वी हैव गिवन sin b इक्वल्स टू sin q. sin b इक्वल्स टू sin q. First of all, we have given angle b. As we all know, the side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be base. So the formula of sin b will be perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. So what is the perpendicular? AQ. What is hypotenuse? BQ equals to sin q. Sin q. So this is the angle. The side in front of right angle is always hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be base. कोई डाउट है? नहीं. So angle Q, ठीक है, कंसिडर कर लिया. Perpendicular upon hypotenuse. So this is the perpendicular. Sorry, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. So AB upon BQ. कोई डाउट है? No sir. BQ से BQ cancel out. What we have now? AQ equals to AB. AQ equals to AB. Sir, we have two sides and both are equals to each other. So देखना, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए. Now we have given that AQ equals to AB. So this is equals to AB. ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की क्या इक्वल है. एंड वी नो दैट इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. लिख देता हूं मैं. इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, if two sides are equal then their opposite angles are also equal. Then their opposite angles are also equal. Then their opposite angles are also equal. Also equal. So ध्यान रखना, whenever we have given two sides are equal, two sides are equal, so then their opposite sides are also equal. Sorry, two angles are equal, then their opposite sides are equal, and two sides are equal, then their opposite एंगल्स आर इक्वल. दोनों से सही है. ठीक है. सो आपने बोला सर AQ के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो देखो ये रहा AQ. AQ के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B इक्वल्स टू नाउ AB. AB के अकॉर्डिंग देखो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? Q. सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. हैंस प्रूव्ड. और यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. हो गया प्रूफ. कोई दिक्कत आई? नहीं ना? सो दो ट्रायंगल लेने की कोई जरूरत नहीं है. बाकी आप लेके करना चाहो तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, सिमिलरिटी का यूज हो जाएगा. ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने ऐसे बता दिया. और अगर आप चाहते हो कि मैं सिमिलरिटी से भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैं उसको सिमिलरिटी से भी एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C. सो इसने बोला है कि एक ट्रायंगल लेना है ACB और राइट एंगल जो है वो कहां पे लेना है? C पे. इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड ABC इज थीटा. और आपको फिगर गिवन है. तो देखो ACB इन विच राइट एंगल एट C. तो यहां पर मैंने राइट एंगल कंसीडर कर लिया. इज देयर एनी डाउट? नो. नेक्स्ट AB इक्वल्स टू 29, AB इक्वल्स टू 29. नेक्स्ट BC इक्वल्स टू 21, BC इक्वल्स टू 21. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सॉरी ABC इज थीटा. जब भी आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ हो एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, मींस यहां पर जो बीच में है उसकी बात हो रही है. यहां पर बीच में कौन है? B. इसका मींस बात भी किसकी हो रही है? B की बात हो रही है. तो यहां पर आप एंगल B जो है उसको क्या लिख दीजिए? थीटा लिखिए. कोई दिक्कत है? पक्का? चलें आगे. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, गिवन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. कोई डाउट है? तो बोला सर साइन आ रहा है तो साइन में तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी आता है, बट वी डोंट हैव द परपेंडिकुलर. अपने पास तो परपेंडिकुलर नहीं है. तो अगर अपने पास परपेंडिकुलर नहीं है सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज़ वी हैव गिवन टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन. सो बाय यूजिंग PGT, Pythagoras theorem. And Pythagoras theorem is also known as Bodhain theorem. Okay, so hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. What is the value of hypotenuse? 29. So 29 square equals to perpendicular. What is the perpendicular? AC. AC square plus 21 square. Okay, sir, what is that 29 का स्क्वायर? तो बताओ 29 का स्क्वायर क्या होता है? पता है?
अब ये भी नहीं पता कैसे निकालते हैं। अच्छा चलो ऐसे देखो, 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 जा 81, है ना, 8 कैरी लग गई, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 9 2 जा 18 क्या लग गई 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, सो 1 कोई डाउट है। सो 841, 841 इज द स्क्वायर ऑफ 29। 841 जो है वो किसका स्क्वायर है, 29 का। सो 841, अब देखो प्लस का है और 21 का स्क्वायर, अच्छा नहीं आता, अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो 441, ठीक है, एक बता दिया, अब आप कर लेना। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा, हाँ माइनस का, ओके, माइनस का 441 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सर इसमें से 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया, बोलो ना 4, AC square. As we all know that 400 is the square of 20. किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। So we will say that it is the square of 20. Take square root, क्या ले लो, square root. So take square root, and what will we get, AC. AC की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, प्लस का 20 यूनिट्स। बोलो कोई डाउट है क्या। So means what is the perpendicular now? The perpendicular is 20, ठीक है, perpendicular. Now what we have to find out, cos square theta plus sin square theta. The first question is cos square theta plus sin square theta. Okay, what is the formula of cos? Base upon hypotenuse, and what is the value of base, 21. So 21 upon hypotenuse is 29, इसका square plus sin square theta. Sin square theta is perpendicular upon hypotenuse. So what is the perpendicular, 20 upon 29 का square. वैसे तो आपको पता होना चाहिए दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, कि यहाँ पर अगर इन दोनों का एंगल सेम हो जाए और इनकी स्क्वायर का सम गिवन है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, और ये बात आपको प्रूफ करके बतानी है कि सच में 1 होगी क्या। तो देखते हैं 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400 अपॉन 441, एलसीएम ले लोगे तो देखो अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा लिख दो और ऊपर वाले दोनों को ऐड करके लिख दो। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएंगे। तो बोलो 441 प्लस 400 841, और इसको इससे कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा 1। तो इट मींस इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गई इसकी वैल्यू 1 आ गई। इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो देखो सेकंड में क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, इस बार किसका साइन है, माइनस का। तो देखो आपके पास क्या था, कोस स्क्वायर थीटा था 441 और नीचे क्या है 841। अब बस प्लस की जगह क्या अप्लाई करना आपको, माइनस। तो अब अभी डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है कि नहीं है। तो आपने बोला सर डिनोमिनेटर तो सेम है 841, तो अगर प्लस है तो न्यूमरेटर को प्लस कर दो और अगर माइनस है तो न्यूमरेटर को क्या कर दो, माइनस। सो 441 माइनस 400 क्या आएगा 41। सो 41, ये इसका आंसर आ गया। सो इट इज आवर आंसर। कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट, इन एग्जांपल 4, ये अब तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई, बहुत बार ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि कोई हद नहीं है। मेरे भी आया था 2015 में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जस्ट वी हैव टू कंसीडर, वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंड इन विच राइट एंगल विल बी एट एंगल बी. So A, B, C. So right angle at B. Okay. Now if tan A equals to 1, what we have given, tan A equals to 1, and we all know that tan is perpendicular upon base. So देखो यहाँ पर एंगल कौन सा गिवन आपके पास, A. So आप यहाँ पर देखिए A. The side in front of right angle is always hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular. Remaining side will be base. कोई डाउट है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है BC, ओके, एंड बेस क्या है, बोलो बेस क्या है AB। सो आप मुझे बताना कि tan A जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन tan A की वैल्यू क्या है 1, तो मैं इसको इरेज करके क्या लिख देता हूँ 1।
और 1/1 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत होना है, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आपने बोला सर यहाँ पर आपने 10 = 4/3 था तो आपने k कंसिडर किया, तो सर यहाँ पे भी करेंगे क्या? हाँ, जब भी आपके पास कोई रेशियो होगा तो आप x, k, y, z कोई भी वेरिएबल इमेजिन कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिया, k ले लिया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 1k। इज देयर एनी डाउट? तो इसका मतलब ये भी 1k है और ये भी 1k है। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग PGT, Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. What is the value of hypotenuse? AC. So AC का square equals to, और perpendicular square plus base square, perpendicular क्या है 1k, तो 1k का square plus base क्या है 1k, तो इसका square। So बोला सर 1k square plus 1k square 2k square, so AC square equals to 2k square, but we have to find out the value of AC, or we can say hypotenuse, so we will take square root, take square root, ठीक है। एंड whenever we take square root then AC equals to plus minus, but side can't be negative। देखो 2 का कोई स्क्वायर रूट जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, एक ही रेशनल नंबर है, तो आपने बोला √2, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, इट मींस AC की वैल्यू आ गई √2k। क्या आ गई? √2k। पक्का? नाउ अपने को तो ये सब नहीं चाहिए था ना, अपने को तो क्या प्रूफ करना था? दैट वेरीफाई दैट 2 sin a into cos a equals to 1। आपको ये वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है 1। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 sin a cos a equals to 1। यहाँ पर बोल दिया कि टू प्रूव, ये प्रूफ करना है आपको। सो मैं क्या लेके चल रहा हूँ? LHS। मैंने बोला कि LHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2 sin, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? 1k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? √2k into cos, base upon hypotenuse, base is 1k, hypotenuse √2k। सो कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, √2 into √2, 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, सो 2 अपॉन √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या है 2, और 2 को 2 से कैंसिल आउट किया, क्या आ गया 1, और इक्वल्स टू RHS। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। Now we will discuss about example 5. So listen, what we have given example 5. So in triangle OPQ, right angle at P, right angle at P, OP equals to 7 centimeter, OQ minus PQ equals to 1 centimeter. So first of all, what we have given? Triangle OPQ and right angle at P. So I am constructing a triangle in which, so this is a triangle OPQ. Listen, so and right angle at P, so this is O, this is P, this is Q, and right angle at P, right angle at P, OP equals to 7 centimeter, so this is 7 centimeter. Next, OQ minus PQ equals to 1. So what we have given? We have given OQ minus PQ equals to 1. Say yes or no? So if I will transposing this one, then it will be changing to positive, so OQ equals to क्या आ जाएगा? 1 plus PQ, 1 plus PQ. Say yes or no? Say yes or no? हाँ, तो it means now OQ equals to OQ is 1 plus PQ, 1 plus a PQ. कोई डाउट है? Now as we all know that we have two sides. The first one is OP and the second one is OQ. We have two sides, so we can find out third side by using Pythagoras theorem. So by using PGT, Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem is hypotenuse square and what angle, sorry, we have to find out angle Q, sorry, we have to find out sin Q and cos Q, means angle Q को आपको लेके चलना है। So the angle Q that we have given, so the side in front of right angle is always hypotenuse, the side in front of given angle is always perpendicular, and the remaining side will be base। कोई डाउट है? So hypotenuse square equals to, hypotenuse क्या है? OQ square equals to perpendicular square, perpendicular क्या है? OP square plus base square PQ square. Is there any doubt? And now the value of OQ is 1 plus PQ, 1 plus PQ. So put here 1 plus PQ equals to, what is the value of OP? OP is 7, 7 का square 49 plus PQ,
एंड PQ की जगह क्या रहने दो, PQ रहने देते हैं, ओके, PQ स्क्वायर। सो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, होता है कि नहीं होता, होता है ना। सो लिसन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB equals to 49 plus PQ square. Is there any doubt? No? Okay, listen then. यहां पे आपके पास प्लस का PQ स्क्वायर, इधर भी किसका स्क्वायर है, PQ स्क्वायर। अगर ये इस साइड में आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। सो PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। से सुनो, 1 का स्क्वायर 1, इट विल बी ट्रांसपोजिंग। अगर ये उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 2 1 जा 2 PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48। 2 इधर मल्टीप्लाई में इट विल बी चेंजिंग टू डिवाइड, सो PQ विल बी 48 बाई 2। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, सो PQ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो आपने बोला कि सर जो PQ है वो क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। एंड वी ऑल नो दैट OQ is 1 plus PQ, 1 plus PQ, PQ की वैल्यू क्या आ गई, 24, so 1 plus 24, now it means OQ is 24 plus 1 25 centimeter. Is there any doubt? No. Next we have to find out sin Q. As we all know that sin, पापा बोल, पापा हंसते हंसते बोल, what is the formula of sine, perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular is OP, and what is OP, 7. Hypotenuse is OQ, and OQ is 25. So sin Q is 7 by 25. Next, we have to find out cos Q. As we all know that cos is base upon hypotenuse. So what is the value of base? PQ, and PQ is 24. What is the value of hypotenuse? OQ, and OQ is 25. So this is the answer. Good out? So next, in example number 6, in triangle ABC, right angle at BAB equals to 5, ACB equals to 30. मैंने फिगर बनाई नहीं है ना, बना के होता है। Listen. So answer. In triangle ABC, right angle at B. कि right angle कहाँ पे? B पे. So let assume that this is the triangle ABC and right angle at B. So here आपका right angle. Next, what we have given, AB equals to 5, AB equals to 5, so this is the 5 centimeter. Next, ACB, मैंने पहले भी बोला था कि अगर कभी भी ऐसे 3 एंगल्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बीच वाले की, और बीच में कौन है, C, और बातें किसकी होती हैं, C नहीं, सॉरी C की नहीं, बीच वाले की, किसकी, बीच वाले की होती है बातें, ठीक है। तो बीच में कौन है, C, इट मींस C कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। कोई डाउट है, नहीं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड BC एंड AC, मींस आपके पास एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट अदर 2 साइड्स। बोले सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर आपके पास 1 साइड और 1 एंगल गिवन है तो बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कैन फाइंड आउट द अदर 2 साइड्स। बोले सर कैसे, सो लिसन, एज वी ऑल नो द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज hypotenuse. This side in front of given angle, this side in front of given angle is always perpendicular, and remaining side will be base. अब सबसे पहले आप क्या निकालना चाहते हो, जिसको भी निकालना चाहते हो वो एक साइड ले लो। किसको निकालना चाहते हो, BC या AC, बोलो किसको, BC को। तो आपने बोला सर मैं BC को निकालना चाहता हूं, तो मैंने BC को टिक लगा दिया। BC क्या है, बेस। 1 साइड तो वो लेनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरी साइड वो लेनी है जो आपको गिवन है। क्या, एक साइड तो वो लोगे जो आपको गिवन है, दूसरी साइड वो लोगे जो आपको फाइंड आउट करनी है। से सुनो, तो देखो ये आपको फाइंड आउट करनी है और ये आपको गिवन है, तो मींस आपको परपेंडिकुलर लेना है और क्या लेना है, बेस। परपेंडिकुलर और क्या लेना है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला होता है tan, क्या होता है, tan। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, AB मींस अपन बोल सकते AB, ठीक है। बेस कितना है, BC। अब आपने बोला सर अब थीटा क्यों ले रहे हो, अब तो अपने पास एंगल है, थीटा की जगह आप क्या ले लो, 30। मैंने बोला क्यों, बोला सर अपने को गिवन है कि वाला एंगल कितना है, 30। इसी एंगल के बिहाफ पे तो आपने इसे परपेंडिकुलर बोला और इसे क्या बोला, बेस। तो जिस एंगल के बिहाफ पे आपने परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किया उसको थीटा की जगह पुट कर दो। आपने बोला सर थीटा की जगह 10, थीटा की जगह क्या पुट किया, 30, और AB इज 5,
और बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी क्या है बोलो? कुछ नहीं। अब आपने बोला कि सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री? टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? एंगल वाली टेबल याद नहीं की ना? मारूंगा ऐसे, देख लेना नालायक। सॉरी सॉरी, है ना, नालायक नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी पढ़ा करो, है ना। वैल्यू याद नहीं ना आप लोगों को? ओके, सो टेन 30, तो बोलो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी 5 की जगह 5, व्हाट इज द, सॉरी बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। बीसी को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीसी इक्वल्स टू 5 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 5√3, सो इट मींस 5√3 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी। और यही आपकी क्या थी? बीसी की वैल्यू आ गई, बोलो आई कि नहीं आई? बोले सर आ गई, तो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एसी। तो अभी आपको बोला वन साइड वो लेनी है जो आपको गिवन है ना, और एक वो लेनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है? 5, और ये क्या है? निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? परपेंडिकुलर, साइन में। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? AC। ठीक है। अब आपने बोला सर यहां पर भी थीटा क्या लेना पड़ेगा? 30। हाँ, यहां पर भी थीटा क्या लेना पड़ेगा? 30। सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, सर AB तो क्या है? 5 है, सो 5। ओके, नेक्स्ट AC। AC, AC की जगह AC। बोले सर साइन 30 की वैल्यू, हाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन AC। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, AC बन जा AC, और 5 2 जा 10, so it means 10 centimeter. This is the AC. So आपको निकालना था BC. So BC is 5√3 centimeter and AC is 10 centimeter. आंसर कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। तो आपने देखा कि राइट एंगल कहां पर बना हुआ है? Q पे। नेक्स्ट PQ3, PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट PR कितना है? PR है ना, PR 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डिटरमाइन द एंगल QPR एंड PRQ। PRQ, हाँ सॉरी PRQ, PRQ। और जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको बोला था कि P की बात हो, बीच वाले एंगल की बात हो रही है, बीच में कौन है? QPR, सॉरी QPR और PRQ, हाँ PRQ, हाँ। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? R। तो इसका मतलब आपको एक एंगल P बताना है और एंगल R बताना है। कैसे बताओगे? Whenever we have two sides, so we can find out remaining two angles of a right angle triangle by the help of the trigonometric ratios. तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए किस एंगल को निकालना चाहते हो। हाँ, जो भी आप डिसाइड करो। आप बोलोगे P तो आप P लेंगे, आप बोलोगे R तो R। किसको? R को। ठीक है, आपने बोला सर R को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैंने R पे यहां से बना दिया। तो the side in front of right angle is always hypotenuse. The side in front of given angle is perpendicular and remaining side will be base. कोई डाउट है? अब आपके पास जो टू साइड्स गिवन है आप उन्हीं को चूज कर लो एंगल निकालने के लिए। आपके पास कौन सी साइड गिवन है? PQ एंड PR। तो PQ परपेंडिकुलर है और PR क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन। तो मैं किसको कंसीडर करूंगा? साइन को। सो बोलो साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा की जगह क्या लोगे इस बार? R, क्योंकि R के हिसाब से अपन ने लिया। तो साइन R इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? PR। बोलो कोई डाउट है? तो साइन R इक्वल्स टू PQ क्या है? PQ 3, PR कितना है? 6। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपने बोला सर साइन R इक्वल्स टू 1/2। अब आप एक बात बताओ, इधर साइन R आ रहा है और इधर आ रहा है 1/2, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपने ऐसे ऐसे किया, बोला सर ये दोनों इक्वल कब होंगे? तो मैंने बोला आप एक बात बताओ, यहाँ 1/2 आ रहा है, क्या कोई साइन में ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू आप 0 30 45 60 लो और वहां 1/2 आ जाए? क्या आ जाए? तो आपने बोला सर ये 1/2 जो है ना, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? इधर साइन है तो आप कोशिश करो इधर भी क्या बने? साइन ही बने। क्या बने? साइन।
है ना। अगर इधर कोस होता तो इधर भी क्या बनाते कोस, इधर टेन होता तो इधर भी क्या बनाते टेन। तो आपने बोला सर इधर 1/2 है और मुझे पता है सर साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। किसकी होती है, साइन 30 की। तो आपने बोला सर साइन आर की जगह तो सर साइन आर रहने देते हैं और इस 1/2 की जगह क्या लिख देते हैं, साइन 30। अब कोई एक आएगा आप में से ऐसा और बोलेगा सर इधर कोस भी तो ले सकते थे। हाँ कोस भी ले सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर इधर पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास जो रेशियो है वही रेशियो आपको राइट हैंड साइड में लेना है। अगर यहाँ पर 10 होता तो मैं 10 बना लेता, कोस होता तो कोस बना लेता, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने बोला सर अब देखो ये दोनों इक्वल है, क्या है, बोला सर देखो मैंने देखा सर साइन की जगह है ना सर, साइन की जगह क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। मैंने बोला सही है। तो बोला सर आर की जगह 30 आएगा तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे कि साइन 30 साइन 30। अगर सर आर की जगह 31 भी आ गया तो इधर तो साइन 31 और इधर 30 सर इक्वल है क्या, मैंने बोला इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल कब है, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन है। अब अगर आर की जगह 30 लोगे तब ये दोनों साइन 30 होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बाकी कहीं पर भी इक्वल नहीं होंगे। सो बाय कंपेरिजन आपने बोला आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 30 डिग्री नहीं हुई तो ये इक्वल नहीं होंगे, है ना, समझ में आया। तो आपने निकाल दिया एंगल आर, निकाला कि नहीं निकाला, आ गया। नेक्स्ट पी क्यू आर, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये राइट एंगल है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल पी। क्या निकालना है, एंगल पी। अब आप एंगल पी को ले लीजिए। This side in front of right angle is always hypotenuse. This side in front of given angle is always perpendicular and remaining side is base. तो आपने बोला सर इस बार जो है ना मुझे एंगल पी निकालना है, क्या निकालना है, एंगल पी। तो मैंने एंगल पी ले लिया। अब एंगल पी निकालना है तो जो आपको गिवन साइड से उनको चूज कर लो। एक तो ये पी क्यू गिवन है और एक पी आर गिवन है। पी क्यू तो क्या है, बेस, और पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आपको क्या लेके चलना है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो आपने बोला सर बेस और हाइपोटेन्यूज तो किसका फॉर्मूला होता है, कोस का। सो कोस एंगल कौन सा है, पी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, ये रहा 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया 1/2। तो आपने बोला सर कोस पी, और इधर भी क्या आ गया सर 1/2। बोला सर अब आपने ऐसे किया था कि इधर कोस साइन था तो सर आपने उधर भी साइन बनाया। अब सर इधर कोस है तो क्या इधर भी कोस बनाओगे, हाँ इधर कोस है तो इधर भी क्या बनाएंगे, कोस। और एक बात बताओ कि 1/2 जो है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है, हाँ 60 डिग्री की। तो आपने बोला सर कोस पी इक्वल्स टू, इसकी जगह कोस 60 डिग्री लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि सर इधर कोस है तो इधर भी क्या बना लेंगे, कोस बना लेंगे। अब एक बात तो बाई कंपेरिजन, बाई ये दोनों इक्वल कब होंगे। तो आपने बोला सर कोस की जगह तो क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, क्या आ रहा है, कोस की जगह कोस आ रहा है। बोला सर अगर मैं पी की जगह 30 45 90 कुछ भी लूंगा तो इधर तो कोस 45 इधर कोस 60, बोला इक्वल नहीं है। तो इधर क्या है, पी है और इधर क्या है 60। तो आप पी की वैल्यू भी क्या ले लीजिए 60। बोला सर पी की जगह 60 लेते ही देखो ये कोस पी है और ये कोस 60 है, तो पी की जगह आपने 60 लिया तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो बाय कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन आपने क्या बोला, आपने बोला कि जो एंगल पी है वो कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। अब आप चाहे देख लो आपके पास पी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, आर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो देखो 60 प्लस 30 90 और 90 प्लस 90 180। एंड वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। बोलो सही है कि नहीं है, है, कोई डाउट। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 8, so listen in question number 8 what we have given, if sin a minus b equals to 1/2। so देखो given क्या आपके पास sin a minus b equals to 1/2। कोई डाउट है, बोला सर इधर साइन आ रहा है तो मुझे भी साइन बना दो क्या, बोला सर अभी तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया, मैंने बोला बना दो। तो आपने बोला कि सर 1/2 है ना, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, किसकी वैल्यू होती है 30 की। तो आपने बोला सर साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। बोला सर अब क्या, मैंने बोला कि साइन की जगह तो क्या साइन। बोला सर इसका मतलब ये है कि a माइनस बी की जगह अगर मैं 30 रखूंगा तब ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने इस क्वेश्चन को, हाँ कि a माइनस बी क्या होगा 30, क्या होगा 30, कि तभी अगर आप इसकी जगह 30 रख दोगे तो देखो साइन 30 इक्वल टू साइन 30। हाँ सच में साइन 30 किसके इक्वल होगा, साइन 30 के। सो बाई कंपेरिजन, बाई कंपेरिजन
आपने क्या बोल दिया कि a माइनस बी की जगह अगर 30 आ जाएगा तब तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो आपने बोला a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 1। बोला सर नेक्स्ट इक्वेशन भी, उसको तो पढ़ा ही नहीं, तो देखो उसको भी देखते हैं। कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब आपके दिमाग की बत्ती चली, बोला सर इधर कोस है क्या, इधर कोस, तो बोला सर इधर भी क्या बनाएंगे, कोस बनाएंगे। सही पकड़ा आपने क्वेश्चन को, ठीक है। कोस a प्लस बी इक्वल्स टू, अब ये बताओ 1/2 वैल्यू होती किसकी कोस में। बोला सर अभी तो किया है 60 डिग्री की, तो मैंने बोला 60 डिग्री सही है। अब आप में से बोला सर 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 इधर कोस है इधर कोस है, अगर मैं a प्लस बी की जगह 60 रख दूंगा तो सर कोस 60 कोस 60 दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो सर इसका मतलब ये है a प्लस बी की जगह क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। हाँ तो आपने सही बोला कि बाई कंपेरिजन a प्लस बी की जगह क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। So it is our equation number 2. Next, we will use equation number 1 and equation number 2 and we will use elimination method जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब वापस से चैप्टर 3 की वीडियोस डालूंगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। So using elimination method on equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 पर क्या यूज करो, एलिमिनेशन मेथड। तो बोलो a माइनस बी, देखो ये रहा 30, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो मुझे है ना सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बिना सब्ट्रैक्ट के ये माइनस बी और प्लस बी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो मैंने बोला ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड। तो माइनस बी प्लस बी तो हो गया कैंसिल आउट ऐड करने पे। तो a प्लस ए क्या हो गया 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। बोला सर ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 45। सो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो बोला सर ए की वैल्यू आ गई, लेकिन सर मुझे तो क्या है, एंगल ए भी बताना था और एंगल बी भी बताना था। अब आप इस ए की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में। तो कहां पे पुट कर रहे हो, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। ए में पुट करो चाहे बी में, कहा ए में, हाँ जहां पुट करना कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए पुट वैल्यू ऑफ ए in equation first. So what is equation first? Equation first is a minus b, तो a की जगह तो क्या रख दो 45। So 45 minus b की जगह b equals to 30। अब आपको पता है ये प्लस का 45 सिर्फ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। सो b माइनस बी इक्वल्स टू 30 माइनस 45 डिग्री, और 30 माइनस 45 क्या होगा 15। सो माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 15 डिग्री। बोला सर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। बोला सर इसमें कुछ कंडीशन भी गिवन थी, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, हाँ। इसने बोला था a इज ग्रेटर देन b, कि a किससे बड़ा है b से। तो देखो a की वैल्यू क्या है 45 और b की वैल्यू क्या है 15, तो a b से बड़ा है। नेक्स्ट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि अगर a प्लस b को ऐड करोगे तो 45 प्लस 15 60, तो 60 डिग्री जो है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है छोटा। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, so what we have given in example number 9, express the ratios cos, tan and sec in terms of sin a, means answer. Listen, we have cos a and tan a and sec a, and we have to change all these ratios in terms of sin a। इन सबके रेशियोज में क्या करना है, चेंज करना है। इज एनी डाउट। तो बोले सर करें कैसे, जैसे आपको पता है कि जो tan है वो क्या होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। तो नीचे कोस आ रहा है ना, उस कोस को भी क्या लिखना है, साइन में ही लिखना है। किसमें लिखना है, साइन में। जैसे आपको पता है सेक है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस, लेकिन जो नीचे कोस आ रहा है उस कोस को किसकी टर्म्स में लिखना है, साइन की टर्म्स में। बोलो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है नहीं है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कोस और जो साइन है इन्हीं से देखते हैं कि आपको पता है इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का क्या है, रिलेशन है। और इन दोनों का रिलेशन है और हमें पता लग गया, हमें क्या लग गया, पता। तो अब हम उसका क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, बेनिफिट उठाएंगे। ये बात रिलेशन के लिए नहीं थी, सॉरी है ना, इसके लिए नहीं थी, ठीक है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि कोस और साइन का क्या है, एक आइडेंटिटी है। क्या है, एक आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1।
अच्छा चल रहा है नहीं मार्कर, ये है ना, मेरे को मेरे मैं क्लास टीचर हूँ है ना, तो मुझे उन बच्चों ने गिफ्ट किया है सेक्शन एस। ठीक है, बहुत अच्छा चला, अलग ही लग रहा है देखो बोर्ड पे, इतनी देर क्या काला 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 लगा रखा था, देखो कितना ब्राइट है। सुनना, अब इस कोस को किसकी फॉर्म में चेंज करना है, साइन की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये कोस को तो इधर रहने दो, ये प्लस का वन, सॉरी साइन स्क्वायर इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। सो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर को किस पे चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपने बोला कि सर हमें तो कोस चाहिए, यहाँ पर तो स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है स्क्वायर, सो टेक स्क्वायर रूट, क्या ले लो, टेक स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे, सो कोस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपको पता है जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या आता है, प्लस और माइनस, सो प्लस एंड माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसका मतलब आप कोस ए को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट, सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने कोस जो है उसको किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन की। देखो कोस जो है उसको साइन की फॉर्म में चेंज कर दिया, किया कि नहीं किया। कोई और रेशियो आ रहा है क्या, देखो कोस के इक्वल्स टू साइन के अलावा नहीं आ रहा, इसका मतलब पहला वाला जो कोस है उसको तो आपने किसमें चेंज कर दिया, साइन में। नेक्स्ट आपको पता है जो टेन ए है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन क्या होता है, कोस ए होता है कि नहीं होता, टेन का फॉर्मूला। बोले सर साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। लेकिन मुझे तो जो इस टेन है इसको केवल और केवल साइन में लिखना है, किस में लिखना है, साइन में। तो देखो ऊपर जो साइन है उसकी जगह तो आप साइन रहने दो, बोले सर रहने दे लिया, आगे सर अब नीचे क्या रहा है, कोस ए, क्या रहा है, कोस ए। कोस ए जो है वो किसके इक्वल है, देखो प्लस माइनस ऊपर लिख देता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कोस ए की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दी, तो इसका मतलब टेन जो है वो भी आ गया, आया कि नहीं आया। अब देखो टेन जो है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, साइन और साइन, कहीं और कोई रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने टेन को भी किसके फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया, बोलो किया कि नहीं किया। नेक्स्ट आपने बोला सर सेक, तो आपको पता है कि जो सेक ए है वो क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। और आपने बोला सर 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 अभी आपने कोस की वैल्यू उठा के यहाँ रखी थी, तो सर यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो। सो सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, आगे बोलो कोस क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, रेशियो। तो आपने कोस को किस में चेंज कर दिया, साइन में, टेन को भी किस में चेंज कर दिया, साइन में, और सेक जो है वो कोस आ रहा था उसमें भी किसको चेंज कर दिया, साइन में। बोलो कोई डाउट है, बोला सर नहीं बहुत इजी था सर ये तो, हाँ बहुत इजी है। तो सुना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन है जहां से हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। पहली बात, आपको सबसे पहली बात बताने क्या होनी चाहिए 8.3 में, कि आपको जो प्रूफ करना है, जो भी प्रूफ करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है एक्सेप्ट साइन और कोस, तो आप उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। क्यों सर, इससे जो है वो आपका क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि जल्दी से आंसर आ जाएगा। बोला सर दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है, आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सभी आइडेंटिटीज जो है वो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर 8 हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, इसमें आइडेंटिटीज है और वो आपको लर्न होनी चाहिए। बोले सर तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये है कि आपको कहाँ क्या प्रूफ करना है वो ध्यान रखना है, कि कहाँ क्या लेके आना है, बस उसका पता लग गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक 1 माइनस साइन सेक प्लस tan इक्वल्स टू 1। तो मैंने बोला सेम हियर, मैंने बोला कि अभी आपको फ्रॉम एलएचएस की अपन एलएचएस लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे करके देख लो, एल किधर बन रहा है, ये एल है ना, इसका मतलब इधर वाली जो साइड है वो आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड लेके चलेंगे और क्या आएंगे, आरएचएस लेके आएंगे। बोलो सही है सुनो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। कहने का मतलब ये है कि मैं जब इस पूरे को सोल्व करूंगा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। अगर इक्वल आ जाता है तब तो ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। कोई डाउट नहीं है। सो देखो अभी आपको बोला कि आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है एक्सेप्ट साइन एंड कोस, आप उनको साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। तो अभी आपने बोला सर सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोस का, तो इस सेक की जगह क्या लिख दीजिए, 1 अपॉन कोस। 1 माइनस साइन, ये सर पहले से ही साइन में, तो पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। नेक्स्ट सेक ए, सेक ए क्या होता है, अभी आपने बोला 1 अपॉन कोस,
तो ठीक है 1/cos प्लस टेन क्या होता है, तो अभी आपने बोला जो टेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये रहा साइन ए अपॉन कोस ए। बोला सर अब क्या करें, चेंज तो कर दिया, अब जो जो आपको आता है वो सब कर दीजिए। हाँ इस चैप्टर में जो जो आता है वो सब कर दीजिए, ठीक है। तो देखो 1/cos ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इनटू, आप इन दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, और अगर ऊपर प्लस है तो प्लस करके लिख दो, माइनस है तो माइनस करके लिख दो, सेम एज इट इज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है, सेम, तो ऊपर वाला ऐसा कैसे उठा के ले लो, 1 प्लस है तो प्लस साइन। अब आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बोला सर क्या, कुछ नहीं आ रहा, तो देखो इसके नीचे 1 ले लू, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस कोस को 1 सॉरी इस कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए, 1 इंटू देखो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ गया, बोलो, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। बोला सर हाँ क्या, बोला सर कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला अभी लिखा था आपने, मैंने बोला क्या, तो आपने बोला सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा कुछ। मैंने बोला आप चाहो तो इसकी जगह लिख सकते हो, या तो आप इसकी जगह क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो कोस स्क्वायर है, अभी आपने बोला था कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो यहां से कोस स्क्वायर है, ये प्लस का साइन स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट है, तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ गया, a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन और साइन का स्क्वायर, और नीचे भी आपने क्या लिख दिया इस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ गया 1। देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये लेके चले और राइट हैंड साइड आ रही है, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, और यही आपको क्या करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। कोई डाउट है, हार्ड लगा क्या, नहीं लगा ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। सो जस्ट वी हैव टू, आपको कौन सी साइड लेके चलनी है, एलएचएस, एंड व्हाट विल वी प्रूव दैट एलएचएस लेके चलेंगे, और क्या लेके आएंगे आरएचएस, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है, सो फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, सो कोट लिख देता हूं, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। बोला सर अभी आपने एक बात बताई थी, मैंने बोला कौन सी बात बता दी तुम्हें, ना ना ऐसे कोई बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। मैंने जो तुम्हें बात बताई थी वो ये थी कि अगर आपके पास साइन और कोस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है तो आप उसको किस में चेंज कर दो, साइन और कोस में, यही बताई थी ना, हाँ कोई दूसरी तो नहीं थी, ठीक है। फिर ठीक है, तो आपने बोला सर क्या, कि सर जो कोट है ना, कोट वो सर टेन का रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। बोला सर ये बात क्यों बता रहे हो, अब बोला सर टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस का भी रेसिप्रोकल कर दो, क्या जाएगा कोस अपॉन साइन। तो कोट का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कोस ए अपॉन साइन, डायरेक्ट याद रखना ही चाहिए आपको, है ना, ठीक है। सो कोट की जगह क्या रख दिया आपने, कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस माइनस आगे क्या आ रहा है कोस ए, तो इसकी जगह कोस ए, नीचे मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि कोस ए को 1 से डिवाइड करोगे कोस ही आएगा, अपॉन कोट की जगह कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस की जगह कोस, क्योंकि वो पहले से मैंने बोला था साइन और कोस पे, साइन और कोस में चेंज करना था, ये पहले से कोस है तो मुझे इसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोला सर कह रहे क्या करना, कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो लग रहा है वो कर दो बस, तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना है, जो लग रहा है वो करना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, क्या आ रहा है साइन, तो आपने बोला सर इन दोनों का एलसीएम आ रहा है साइन ए। बोला साइन को साइन से डिवाइड करो, 1 1 को कोस से मल्टीप्लाई करो कोस, माइनस साइन को ए से डिवाइड करो, बोलो साइन को 1 से डिवाइड करो साइन,
और साइन को कोस से मल्टीप्लाई करो तो साइन ए इंटू कोस ए। आगे सेम नीचे देखो, यहां पर भी एलसीएम क्या ले लो, यहां पर भी आपने एलसीएम ले लिया क्या, साइन ए। तो साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 इंटू कोस, माइनस साइन को 1 से डिवाइड किया साइन, तो साइन इंटू कोस, सॉरी प्लस साइन इंटू। बोले सर अब क्या करें, कुछ नहीं करना, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, कोई दिक्कत। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कैंसिल आउट कैसे हुआ वो भी बताना पड़ेगा। तो देखो जो ये है आपके पास डिनोमिनेटर है, इसको उल्टा करके लिख दो। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे नीचे वाले से। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आता, साइन ए आता, और यहां से साइन ए क्या हो जाता, कैंसिल आउट, ठीक है। और बीच वाला किससे मल्टीप्लाई होता, बीच वाले से, तो ये इसके साथ आता। तो देखो कैंसिल हो गया। आगे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ऊपर से कोस कॉमन ले लूं क्या, ले लेता हूं। सो आपने बोला कोस कॉमन ले लिया है आपने, तो यहां से क्या बचेगा, कोस था और वही उठा लिया, जो था वही उठा लिया, तो कुछ नहीं बचेगा, मींस क्या बचेगा 1, कुछ नहीं की जगह 1, माइनस कोस कॉमन ले लिया, क्या बच गया साइन। नीचे से भी क्या कॉमन ले लो, यहां से भी क्या कॉमन ले लो, कोस ले लो, ले लिया पक्का। अब आपने बोला कि सर कॉमन तो ले लिया, और अगर आप इसको कैंसिल आउट नहीं करते तब भी काम चल जाता, साइन को बिना कैंसिल आउट किए भी हो जाता, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। तो देखो कोस कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया 1 प्लस साइन। अब आपने बोला कोस से कोस क्या हो गया, डिवाइड, क्या आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब क्या, अब दो तरीके हैं, या तो साइन की आपको क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो इसे साइन की जगह क्या लिख दो, कोसेक लिख दो। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दीजिए, साइन से डिवाइड कर दीजिए, किससे, साइन से। तो मैं बोल देता हूं डिवाइड इट्स न्यूमरेटर, एन फॉर न्यूमरेटर है ना, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर बाई साइन ए, कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, साइन से। तो देखो मैं 1 को साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1 अपॉन, 1 को साइन से डिवाइड किया 1 अपॉन साइन, प्लस साइन को साइन से डिवाइड किया 1, कोई डाउट है। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, क्या होता है कि साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो इस 1 अपॉन साइन की जगह क्या आ गया कोसेक, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, और ये आपकी क्या है आर एच एस। सो आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब अपन देखते हैं अपने चैप्टर 8 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12 है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है ना, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। सो इन एग्जांपल नंबर 12 है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। बोले सर ये तो बुक में है ही नहीं, ये कहां से लेके आ गए। हाँ, ये सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें इस क्वेश्चन को इसके इक्वल प्रूफ करवाया आपसे कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इज इक्वल, कि ये वाला इसके इक्वल है, और बुक में दे रखा है कि प्रूफ करो दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, कि ये इसके इक्वल है। तो मैं एक ही क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, एक तीर से नाना ठीक। Listen. So in this question we have to prove that the following is equals to this one. चलो पहले ये लेके चलते हैं कि इसके इक्वल ये है। तो देखो साइन थीटा, मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूं LHS, ठीक है, फ्रॉम LHS साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको अपने आंसर में क्या चाहिए, सेक और टेन, सेक थीटा एंड टेन थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, यही चाहिए ना, अरे सेक थीटा और टेन थीटा ही चाहिए ना। हाँ, सो बताओ यहां पर आपके पास सेक और टेन है क्या, बोला सर अब तक तो आपने ऐसे बोला था
कि आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना सर, उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। हाँ, लेकिन इस बार अपना आंसर किसमें है? सेक और टेन में। तो मैं इस रेशियो को किसमें चेंज करूंगा? सेक और टेन में। तो अब बोलो सर करे कैसे? सेक में चेंज कैसे होगा सर? तो आपको पता है कि अगर वन के नीचे कोस आ जाए, वन के नीचे क्या आ जाए? कोस, तो क्या हो जाएगा? सेक। अगर इसके नीचे कोस आ गया तो इसके नीचे भी कोस ले लो, साइन अपॉन कोस भी क्या हो जाएगा? टेन। साइन अपॉन कोस टेन, वन अपॉन कोस सेक। इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे कोस चाहिए। क्या चाहिए? कोस थीटा। तो आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दीजिए? कोस थीटा से। सो डिवाइड इट्स एन फॉर न्यूमरेटर, लिख देता हूं पूरा, एन फॉर न्यूमरेटर, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। किसके? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो? कोस थीटा से करो। साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दिया, माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा। सो आपने सभी को कर दिया। ये तो सर क्या था? न्यूमरेटर। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस वन अपॉन कोस। अब आपको पता लग गया होगा क्या? बोले सर क्या पता लग गया? कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बोले सर पता तो लग गया। दूसरा सर सेक थीटा भी होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोस थीटा। तो मीन्स ये है कि आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह क्या लिख दीजिए? टेन, और वन अपॉन कोस की जगह क्या लिख दीजिए? सेक। तो आपने बोला कि सर टेन थीटा माइनस कोस को कोस से डिवाइड किया, वन प्लस वन अपॉन कोस थीटा सेक थीटा अपॉन साइन अपॉन कोस टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब आपने बोला कि सर अब क्या करें? तो याद है जब मैंने एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था बाय यूजिंग आइडेंटिटी। उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना आंसर कहां चाहिए? न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? बोलो कहां चाहिए? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? तो आप मुझे एक बात बताओ, ये दो घर है, ठीक है, ये दोनों घर है, और आपको इस ब्लू वाले घर से शुगर चाहिए, ठीक है, और आप आ रहे हो सामने से, तो कौन से घर की बैल बजाओगे? ग्रीन वाले की या ब्लू वाले की? शुगर कहां से चाहिए? ब्लू वाले से। तो बैल भी कहां किसकी बजाओगे? इसी की बजाओगे ना? अरे इसी की बजाओगे ना बैल। हाँ, तो इसका मतलब है जहां से आपको जो चाहिए बैल वहीं बजेगी, हलचल वहीं होगी, छेड़खानी वहीं होगी, कहीं और छेड़खानी, कहीं और हलचल, कहीं और बैल नहीं बजानी है। जहां से जो चाहिए वहीं बैल बजानी है। तो आपका आपका आंसर न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में? आंसर चाहिए आपको कहा? डिनोमिनेटर में। कहा चाहिए आंसर? कहां चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो छेड़खानी, हलचल, बैल कहां बजाओगे? डिनोमिनेटर में ही बैल बजाओगे, क्योंकि आंसर कहां से मिलेगा? डिनोमिनेटर से। तो बोला सर डिनोमिनेटर में बैल कैसे बजाएं? तो आपको क्या चाहिए? सेक। तो देखो सेक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आपको क्या चाहिए? टेन। बोलो टेन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए? आपको वन नहीं चाहिए, तो इसकी बैल बजा दो। क्या बजा दो? इसकी बैल। मीन्स इस वन की जगह कुछ ऐसा पुट करो सेक और टेन की फॉर्म में कि ये वन हट जाए, ये वन हट जाए। तो बोला सर इसमें अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? कि यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सर इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। सो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। बोला सर इस वन की जगह हो गया ऐसा, हो गया। इसका मतलब इस वन की जगह आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसकी फॉर्म में? सेक और टेन की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यही आपको सेक और टेन लेके आना है। अगर आप इस वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो वो सेक और टेन में नहीं है, नहीं है ना। अब बोला सर मैं ऊपर भी तो लिख सकता था सर, वन ऊपर, तो ऊपर भी तो आ रहा है वन, लेकिन आपको आंसर कहां से चाहिए? डिनोमिनेटर से। तो जहां से आंसर चाहिए, जहां से कुछ चाहिए, बैल वहीं बजानी है, ठीक है ना। बैल जहां से कुछ चाहिए वहीं बजानी है, बाकी कहीं और से बैल नहीं बजानी, ठीक है। तो अब बोला कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो हो रहा है। हाँ, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? बोले सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इक्वल्स टू में क्या है? वन।
तो इसका मतलब मैं इस 1 की जगह ये दोनों लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? पक्का? अब देखो आ जाओ, tan की जगह tan थीटा प्लस sec थीटा, और इस 1 को लिख रहा हूँ बाद में -1 अपॉन, इन दोनों को साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस 1 को बाद में, तो tan थीटा या tan थीटा और sec थीटा दोनों है ना, तो tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, प्लस 1 1 है ना, और 1 की जगह तो ये दोनों लिखने अपने को, तो लिखो, बोलो बोलो, हाँ, sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके, आगे sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर अगर यहाँ tan थीटा माइनस sec थीटा है, तो सर इस इन दोनों में से मैं अगर इसको भी क्या बना दूं, इस वाले को क्या बना दूं सर, tan थीटा माइनस sec थीटा बना दूं, क्या बना दूं, tan थीटा माइनस sec। बोले सर क्यों बनाना है, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, sec माइनस tan चाहिए ना, क्या चाहिए, sec माइनस tan, तो इसका मतलब sec माइनस tan तो आपके पास है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको क्या कर दूं, इसके जैसा बना दूं कि नहीं बना दूं, तो कैसे बनेगा, इधर से किसका है, माइनस का, और इधर से किसका है, प्लस का, तो ये है 10 प्लस का और ये 10 किसका है, माइनस का। इसका मतलब अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो देखो tan थीटा प्लस sec थीटा -1, आपने बोला कि कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो अगर नहीं, अगर आप ले भी रहे हो, अगर चाहते हो कि सर मैं तो डायरेक्ट यही कॉमन लूंगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो एक काम करते हैं, यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, -1। अगर यहां से -1 कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस। तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ, ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, -1, ठीक है, ले लिया, क्या बचेगा यहाँ, बोलो, जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस का sec थीटा आ रहा है, नहीं आ रहा, अब ये प्लस का था, माइनस का, बोला सर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने इस वाले ब्रैकेट से -1 कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया, आगे देखो, प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपने बोला सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में क्या है, सेम है, तो मैंने बोला कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। तो देखो आपने बोला tan थीटा प्लस sec थीटा -1, तो आपने ये वाला ब्रैकेट दोनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ले लो कॉमन, sec थीटा माइनस tan थीटा ले लिया कॉमन। अब यहां से जब इसको कॉमन लिया तो यहां से क्या बच गया, -1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1, और उधर से क्या बच गया, प्लस का, प्लस को इनसे मल्टीप्लाई करो, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा -1 है कि नहीं, और ऊपर भी यही आ रहा है क्या, sec थीटा प्लस, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा -1, और नीचे भी sec थीटा प्लस tan थीटा -1, कि 1 किसका है, माइनस का, 1 किसका है, माइनस का, बाकी ये दोनों प्लस के, ये दोनों भी प्लस के, क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपने बोला 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो sec थीटा माइनस tan थीटा लेके आना था कि नहीं लेके आना था, आना था ना। अब आपने बोला सर, लेकिन आपने तो बोला था सर कि ये इसके इक्वल भी प्रूफ करवा लेते हैं, हाँ करवा लेते हैं, तो बोला सर करेंगे कैसे, अब इससे आगे और करेंगे थोड़ा सा, क्या, इससे आगे और क्या करेंगे कि इसी से इसी को जब अपन सोल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। बोले सर कैसे, तो देखो 1 की जगह जो है ना, आप 1 रहने दीजिए, ठीक है, और ये जो sec थीटा है इसकी जगह क्या लिख दीजिए, 1 अपॉन cos थीटा, माइनस इस tan थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको पहले भी बताया था कि आप इस 1 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन 1, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऐसा कैसा, और डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो ऊपर नंबर आपके पास है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस है तो प्लस करके लिख दो, माइनस है तो माइनस करके, तो कोस 1, माइनस है तो माइनस साइन थीटा। बोलो से सुनो। अब अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ, और बीच वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा अपॉन इस 1 को इस मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, देखो 1 को 1 से किया 1, साइन को 1 से किया 1 माइनस साइन थीटा, तो ये आया कि नहीं आया, सो इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूफ। तो जो आपको प्रूफ करवाना है वही आप प्रूफ कर सकते, हैंस प्रूफ। और ये आपका चैप्टर 8 विद एग्जांपल्स कंप्लीट। नाउ अब अपन सोल्व करेंगे इसके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी
एकदम ऐसे ही जैसे आपने एक्सरसाइज की है, इजी वे में। अब दूसरी बात यह है कि अब नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो अगर आप कमेंट कर देंगे तो अपन वही चैप्टर अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। मीन्स अभी से आज ही वीडियो शूट हो जाएगी, क्योंकि आज संडे है ना, और संडे तो टाइम मिल जाएगा, तो वीडियो शूट हो जाएगी। सो बी फास्ट और आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा वीडियो पढ़ना है, कौन सी क्लास, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।